Part 1. Chapter 3, Mina's letter. Let's say, talk to 4 of your classmates. Find out the following information and write in the columns below. क्या करना है? आपके कोई भी 4 फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ बातचीत करनी है और उनके बारे में ये जानकारी आपको लिखनी है. सबसे पहले नेम. यहाँ पर मैंने 2 फ्रेंड्स के नेम लिखकर इन्फॉर्मेशन लिखी है. इस तरह से आपको आपके 4 फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं. उसके बाद उनका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है वो लिखना है. देन फेवरेट गेम स्पोर्ट कौन सा है वो यहाँ पर लिखना है. देन फेवरेट फूड कौन सा है वो यहाँ पर लिखना है. जैसे कि आद्या. अब आद्या जो है उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम है डोरेमोन और फेवरेट गेम है हाइड एंड सीक. देन फेवरेट फूड है पाव भाजी. लाइक दैट. विनोद का फेवरेट टीवी प्रोग्राम है टॉम एंड जेरी. देन फेवरेट गेम है क्रिकेट एंड फेवरेट फूड है राइस एंड दाल. इस तरह से आपको आपके 4 फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पर लिखनी है. नाउ डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. माय क्लासमेट्स नेम इज. क्लासमेट का नाम क्या है वो लिखना है. अब यहाँ पर मैंने विनोद लिख कर दिया है. सेम आंसर्स आपको लिखना है, ऐसे नहीं है. आप आपके फ्रेंड्स के नेम उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हो. माय क्लासमेट्स नेम इज विनोद. आई लाइक हिम बिकॉज ही इज चीयरफुल. यहाँ पर क्वालिटी लिखनी है कि वो कैसा है. आपका फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉय है, जो भी है वो कैसा है उसकी क्वालिटी यहाँ पर लिखनी है. ही इज अ चीयरफुल. My classmate's favorite TV program is Doraemon and he likes to play badminton. He loves to eat uttappam. अब यहाँ पर हमने विनोद यानी बॉय का नाम लिखा है तो यहाँ पर him, he like, she नहीं आएगा, यहाँ पर he आएगा क्योंकि यहाँ पर बॉय का नाम है. जब आप यहाँ पर गर्ल का नाम लिखोगे तो वहाँ पर he की जगह पर आपको she लिखना होगा. Before going to start actual teaching of this chapter, we will see a short video all about explaining all about Mina's letter. Mina's letter. Mina calls her grandfather Nanu. He is her mother's father. Mina wrote a letter to Nanu about her new friend. 15 July 2018. Dear Nanu, a new girl joined our class today. Miss asked her to sit in front and told the class to show her around and be friends with her. But nobody spoke to her. She was wearing a pretty bracelet and had a new bag. She wore her hair in 2 long plaits tied up with ribbons. Manu and Asim stared at her plaits. Then they whispered to each other and laughed. She must have felt uncomfortable because she looked away. Gauri said she looked proud and stuck up. I thought she looked lonely and sad. She did not know anyone. So I went up to her and said hello. The new girl smiled and suddenly looked happy. I asked her to sit next to me and we started talking. I was glad that I had said hello because she is a really nice person. The funny thing is that she too is called Mina, short for Amina. She has come from Mumbai. Her mother is going to work here. We have become good friends and are interested in the same things. We plan to do things together. We have also decided to call ourselves the Mina Duo. Isn't that cool? How are you and Nani? When will you visit us? I really miss you both. With lots of love, your loving granddaughter, Mina. 19 July 2018. Dear Mina, I am so glad that you spoke to the new girl. It is very difficult when you first go to a new place. Mina must have been scared and lonely. You made her feel welcome. When you are warm and friendly towards people, we also show their love and affection for you. I am really proud of you.
Nani and I are busy making different kinds of snacks and sweets for you. When we are through, we will pack them in a big box and come to Bengaluru. I look forward to meeting the other Meena. With lots of love, yours lovingly, Nani. Meena calls her grandfather Nanu. He is her mother's father. Meena wrote a letter to Nanu about her new friend. Read what she wrote. नीना जो है अपने ग्रैंडफादर को एक खत लिख रही है। वो अपने ग्रैंडफादर को नानू कहती है। ये नानू कौन है? नीना के मदर्स फादर है। और वो अपने ग्रैंडफादर को अपने न्यू फ्रेंड जो है उनके बारे में खत में लिख रही है। लेट्स सी वो क्या लिख रही है। 15 जुलाई 2018 डियर नानू। अब लेटर लिख रही है तो लेटर की स्टार्टिंग उसने कैसे की है? यहाँ पर क्या लिखा है? स्टार्टिंग में डेट लिखी है 15 जुलाई 2018 डियर नानू। अब किसे लिख रही है? नानू को लिख रही है, इसलिए उसने सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखा है? डियर नानू। A new girl joined our class today. Miss asked her to sit in front and told the class to show her around and be friends with her. एक नई लड़की जो है हमारे स्कूल में ज्वाइन हुई है। जो टीचर है हमारे मिस है वो उसे क्लास में साथ लेकर आए और उन्होंने उसे आगे बैठने के लिए कहा और सभी बच्चों से कहा था कि उसे सब जगह दिखाओ, क्लास हमारा दिखाओ और उसके साथ फ्रेंडली रहो, ऐसे टीचर ने बताया था। But nobody spoke to her. She was wearing a pretty bracelet and had a new bag. She wrote her hair in two long plaits tied up with ribbon. जबकि टीचर ने बोला था कि सभी बच्चों ने उसके साथ फ्रेंडली रहना है, लेकिन फिर भी उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। उसने बहुत ही प्रिटी ब्रेसलेट वेयर किया था, हाथ में पहना हुआ था और उसने 2 चोटियां बांधी हुई थी जो कि रिबन से टाई की हुई थी। मनु and Asim started at her plates. Then they whispered to each other and laughed. She must have felt uncomfortable because she looked away. मनु और असीम जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ विस्पर करना यानी एक दूसरे के कान में कुछ बात कर रहे थे उसके बारे में कि उसकी चोटियों के बारे में वगैरह ऐसे उसके ऊपर कमेंट्स करके बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। उससे क्या हुआ कि ये जो नई गर्ल है उसे अनकंफर्ट फील हुआ और वो इधर उधर देखने लगी। गौरी सेड शी लुक प्राउड एंड स्टक अप। गौरी क्या कह रही है कि वो कैसे दिखाई देती है? प्राउड, वो बहुत मगरूर और घमंडी दिखाई दे रही है। बट I thought she looked lonely and sad. She did not know anyone, so I went up to her and said hello. गौरी कह रही है कि वो मगरूर दिखाई देती है, घमंडी लग रही है, लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि वो अकेली है और दुखी है क्योंकि वो इस क्लास में नहीं आई है, तो उसका कोई फ्रेंड नहीं है। उसका कोई फ्रेंड ना होने की वजह से वो अकेला महसूस कर रही है और सैड हो रही है। तो मैं उसके पास गई और उसे क्या कहा? मैंने उसे हेलो कहा। Then new girl smiled and suddenly looked happy. उसके पास जाकर जैसे ही मैंने उसे हेलो किया तो उसने स्माइल की और वो खुश हो गई। I asked her to sit next to me and we started talking. मैंने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और हम दोनों गपशप करने लगे। I was glad that I had said hello because she is a really nice person. The funny thing is that she too is called Meena, short for Amina. इसमें फनी चीज क्या थी कि वो जो नई गर्ल है उसे भी मीना ही कहते थे। एक्चुअली उसका नाम क्या था? अमीना, लेकिन शॉर्ट में उसे क्या बोलते थे? मीना बोलते थे। She has come from Mumbai. Her mother is going to work here. वो कहाँ से आई थी? मुंबई से आई थी। उसकी मम्मा वहाँ पर काम कर रही है। We have become good friends and are interested in the same
बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं और हम दोनों की जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है वो सेम है. वी प्लान टू डू थिंग्स टुगेदर. वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू कॉल अवरसेल्फ द मीना डुओ. इजंट दैट कूल? अब दोनों की जो फेवरेट इंटरेस्टेड जो चीजें हैं वो सेम है, इसलिए वो दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं. जो भी कुछ करना है वो साथ साथ करने के लिए प्लान कर रहे हैं. और उन्होंने क्या डिसाइड किया है? खुद को क्या कहना? द मीना डुओ, यानी मीना की जोड़ी. डुओ यानी पेयर, दोनों. यहाँ पर पेयर के लिए डुओ वर्ड यूज किया गया है. तो मीना की जो जोड़ी है इसके लिए उन्होंने खुद को क्या कहना पसंद किया? द मीना डुओ. इजंट इट कूल? क्या ये अच्छी बात है? हाउ आर यू एंड नानी? आप कैसे हो और नानी कैसी है? व्हेन विल यू विजिट अस? आई रियली मिस यू बोथ. आप हमें मिलने के लिए कब आ रहे हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ. विथ लॉट्स ऑफ लव, योर लविंग ग्रैंड डॉटर मीना. बहुत प्यार के साथ आपकी ग्रैंड डॉटर मीना. Read the letter that Meena's grandfather wrote in reply. जब मीना ने लेटर लिखा था वो डेट कौन सी थी? 15 जुलाई 2018. और वो लेटर पढ़ने के बाद नानू फिर उसे क्या कर रहे हैं? रिप्लाई दे रहे हैं. मीना ने लिखा था 15 डेट को, अब नानू ने लिखा है 19 डेट को, यानी उनको जो लेटर मिला है उसके बाद उन्होंने ये आंसर लिखा है. 19 जुलाई 2018. डियर मीना. जब नानू आंसर कर रहे, रिप्लाई कर रहे हैं उस लेटर का, तो उन्होंने क्या लिखा है? स्टार्टिंग में पहले डेट लिखी है, उसके बाद लिखा है डियर मीना. आई एम सो ग्लैड दैट यू स्पोक टू द न्यू गर्ल. इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू फर्स्ट गो टू अ न्यू प्लेस. मीना मस्ट हैव फेल्ट स्कैर्ड एंड लोनली. मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उस न्यू गर्ल के साथ बातचीत की. वो जब आप कहीं नई जगह पर जाते हो तो उस समय ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पर एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नए पर्सन के लिए. तो आपने जो खुद होकर उससे बात की उससे मैं बहुत खुश हूँ. जो मीना मस्ट हैव फेल्ट स्कैर्ड एंड लोनली. जो मीना नई आई हुई मीना है वो कैसे फील कर रही होगी? स्कैर्ड एंड लोनली. थोड़ा सा घबराई हुई होगी, वो अकेलापन महसूस कर रही होगी. यू मेड हर फील वेलकम. तुमने उसे वेलकम कराया, उसे हेलो करके उसके साथ खुद होकर बातचीत की. When you are warm and friendly towards people, they also show their love and affection for you. I am really proud of you. जब आप खुद होकर किसी को वेलकम करते हो, फ्रेंडली होते हो, तो ऐसे में जो लोग हैं वो भी आपको क्या करते हैं? बहुत सारा स्नेह और प्यार देते हैं. इसलिए आपको हमेशा किसी के साथ खुद होकर बात करनी चाहिए, वेलकम करना चाहिए. और क्या कह रहे हैं? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. हमें आप पर गर्व है. नानी एंड आई आर बिजी मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर यू. नानी और मैं बिजी हूँ. हम क्या बना रहे हैं? स्नैक्स और स्वीट्स. किसके लिए? मीना के लिए. When we are thought, we will pack them all in a big box and come to Bangalore. हम ये जो पूरे स्वीट्स और स्नैक्स हैं वो बड़े से एक बॉक्स में पैक करके तुम्हें मिलने के लिए आने का सोच रहे हैं. I look forward to meeting the other मीना. यहाँ पर I look forward to, इसका मीनिंग क्या दिया है? eagerly wait to. I look forward to meeting the other मीना. हम बहुत ईगरली, उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि जब हम बेंगलुरु आएंगे तो किससे मिलेंगे? जो न्यू फ्रेंड है आपकी, अदर मीना जो है, उसके साथ मिलने के लिए हम भी उत्सुक हैं. विथ लॉट्स ऑफ लव. लेटर का एंड किस तरह से किया है? विथ लॉट्स ऑफ लव. योर्स लविंगली नानू. तो इस तरह से हमने देखा है कि मीना ने कैसे अपने ग्रैंडफादर को जो है लेटर लिखकर बताया कि जो उनके क्लास में न्यू गर्ल आई है
तो उसके साथ उसने कैसे फ्रेंडली होकर बातचीत करना शुरू कर दिया है, कैसे उसे वेलकम किया है। इसी तरह से इस जो चैप्टर है इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर हमारे क्लास में भी अगर कोई न्यू एडमिशन हो रहा है या बच्चा कोई आ रहा है तो हमें भी उसके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर न्यू प्लेस में जाने के बाद जो नया पर्सन है वो लोनली फील करता है, तो इसीलिए जो नया आता है उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए। Here we have completed our chapter. In our next part we will see the exercise. Meanwhile you have to read this chapter carefully.